ہمارے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ملک کے نامور نوجوان شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب موجود ہیں. میں عمران صاحب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں. سیاست سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف رکھیں. ان کے ساتھ میں صوبے کے صدر پروفیسر محمد ریاض احمد صاحب کو بھی گزارش کروں گا اور جناب تابش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سامنے اسٹیج پر تشریف رکھیں گے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم. عمران پرتاپ گڑھی کے جن کی شاعری پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی، سعودی عرب، دبئی، قطر، دوحہ میں بھی مشاعروں میں ان کے اشعار جو ہیں وہ گونجتے ہیں اور ان کی شاعری سننے میں دل کی گہرائیوں سے انکش بھٹناگر صاحب کا، جو ہمارے نیشنل سیکریٹری ہیں نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا اور جموں کشمیر کے انچارج بھی ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. ہمارے یہاں پر محمد شعیب صاحب ہیں. محمد شعیب صاحب بھی ہمارے نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا NSUI سے ان کا تعلق ہے اور یہ لوگ سیاست سے ہیں، لیکن عمران پرتاپ گڑھی صاحب سیاست میں ہوتے ہوئے جو ہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، بیرون ممالک میں بھی جاتے رہتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ جموں میں تشریف لائے تھے اور ہمارے شعبے کے صدر پروفیسر محمد ریاض صاحب کو جب معلوم ہوا کہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب جموں میں ہیں تو انہوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ شعبے میں تشریف لائیں، کیونکہ جموں کشمیر میں شعبہ اردو جو ہے یہ بہت فعال شعبہ ہے اور یہاں جب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کہ ہمارے ہندوستان سے جو شعراء حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہم ان کو ضرور یہاں پر دعوت دیتے ہیں. اور میں آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں اپنے شعبے کی طرف سے، اپنے طلباء و طالبات ریسرچ اسکالرز کی طرف سے، اپنی فیکلٹی کی طرف سے، یونین آف انڈیا جو ہماری آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ، ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پر پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے، سبھی ٹکڑوں پر پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے وہ اپنی شاعری سے خود سنائیں گے اپنی شاعری اور آپ محسوس ہوں گے. کیا آرزو کریں تیری آرزو کے بعد، کیا آرزو کریں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد. دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے دودھ پلایا ہے مجھ کو وضو کے بعد. تو وہ شاعر ہیں جو آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. میں اپنے شعبے کے سر سے گزارش کروں گا کہ میں ڈاکٹر چمن لال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گلدستہ پیش کریں گے. پروفیسر ریاض صاحب اور ڈاکٹر چمن لال صاحب عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو جو ہے وہ گلدستہ عقیدت یہاں پیش کرتے ہوئے میں ریاض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تابش صاحب اپنے شعبے کے صدر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کے اور نوجوان شاعر جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے ان کے درمیان زیادہ دور حائل نہ ہوتے ہوئے شعبے کے صدر پروفیسر محمد ریاض احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ذریعے خیالات کا اظہار بھی کریں اور ان کا استقبال بھی کریں. پروفیسر محمد ریاض احمد. شکریہ مناز صاحب.
इमरान प्रताप गढ़ी साहब, तानिश साहब, यहाँ बैठे हमारे बहुत सारे मेहमान, तलबा और तालबात, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इमरान प्रताप गढ़ी जो है आज हमारे दरमियान है। शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी की ये कोशिश रहती है कि कोई भी शायर और अदीब जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको अपने तलबा और तालबात से तारुफ कराना। और एक रिवायत हमारे शोबे की ये भी रही है इमरान साहब कि अदीब से मुलाकात जो है बड़े अपने तलबा और तालबात और स्कॉलर से करवाते, जिससे वो मिल सकें और बात कर सकें और उनको अंदाजा हो कि वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से असबाब थे जो किसी भी शायर या अदीब को तरफ माइल करता है। मैं सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ इमरान साहब कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, काफ़ी बिजी शेड्यूल है इनका, इनको वापस जाना भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी दावत कबूल की शोबे उर्दू की। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने शोबे में, शोबे की तरफ से और ज़ाती तौर पर भी। दरअसल आज के इस माहौल में जहाँ मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, ऐसे दौर में इमरान प्रताप गढ़ी जैसे शायर और अदीब जो दिल को जोड़ने की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं, तो वो एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें नजर आती है कि ऐसे शायर और ऐसे अदीब ही हैं जो हमें एकजुट होकर रहने पर मजबूर करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। तो इस हवाले से भी मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ये बहुत ही मुमताज़ शायर हैं। और कमाल तो ये है कि ये बरजस्ता शायरी करते हैं और खुदा का ख़ास अतिया है इन पर कि ये जितने खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, तो उनके जो फिक्र है, उनका जो वो कि वो किस गहराई और गहराई के साथ अपनी शायरी करते हैं। तो आज मैं इनका अपने शोबे में इस्तेमाल करता हूँ। आप हमें हमेशा सुनते हैं, आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ताबिर आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और अपने तमाम मेहमानों का जो यहाँ हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, अपने तलबा और तालबात का ख़ास तौर से कि आज के इस अदीब से मुलाकात, शायर के मुलाकात में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आप बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको ये अंदाज़ा होगा कि शायर और अदीब कौन से ख्यालात लेकर आते हैं और वो किस तरह से हमें मुतासिर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हज़रात, जिस तरह अभी आपने सुना कि रियाज साहब ने आपको बता ही दिया है कि किस तरह की वो शायरी करते हैं और किस है और पूरे मुल्क के हालात और वाक़ात और सनहात को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल ना होते हुए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बेहतरीन शायरी करने वाले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ और आप सबसे मुलाकात करूँ। मैं एक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ आया हुआ था। हमारी एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी शादी है, उनका वलीमा था कल, तो इस सिलसिले में आना हुआ। लेकिन ऐसे कीमती लम्हे मिल जाएंगे मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के और आप सबसे मुलाकात करके और जम्मू की जो तहजीब है, यहाँ का जो उर्दू डिपार्टमेंट है, इसकी बहुत तारीफ़ें सुनता रहा हूँ मैं और यहाँ आकर के ये महसूस हो रहा है कि
यकीनन जितनी तारीफें हमने दिल्ली में या इलाहाबाद में बैठ के सुनी है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये डिपार्टमेंट है, ये यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। और मुझे कहीं से इल्म नहीं था कि आएंगे तो बिल्कुल सुनने सुनाने जैसा बनेगा। ये बताया गया कि यूनिवर्सिटी आइए और एक सबसे मुलाकात करके वापस जाना है, लेकिन किसी इस तरह की महफिल में आ करके बिना कुछ कहे सुने वापस चले जाएं तो ये भी शायद नाइंसाफी होगी। पहली बार आपके बीच में आया हूँ, यकीन करें कि आके ये महसूस हो रहा है, किसी का शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं नाते तो बड़ा नुकसान होता। अच्छे लोग हैं और सबके बीच में आकर के आप सारे लोगों के बीच में आकर के ये मुझे महसूस हो रहा है। ये कहते हुए मुझे बिल्कुल गुरेज भी नहीं है कि शायरी करते करते रियासत की खुरदुरी ज़मीन पर आना पड़ा। मुझे भी इल्म नहीं था। जब मैं जिन मुद्दों पर, जिन इशूज़ पर, जिन ज़ख्मों को अपनी नज़मों में जगह दे रहा था, अपनी शायरी का हिस्सा बना रहा था, एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके हल तलाशने के लिए सियासत का रुख करना चाहिए, क्योंकि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ी हुई है। तो मैं सियासत की तरफ चला आया और यहाँ आकर के कभी कभी खुद से बहुत सवाल करता हूँ कि आके सही किया या गलत किया। लेकिन फिर लगता है कि मुल्क के हालात जितना दिन ब दिन जिस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं, ऐसे में अच्छे लोगों की ज़रूरत भी है कि आएँ और अगर कुछ बदल सके तो बदल दें। मैं कुछ सुनाऊँ आपको। मैं पहली बात तो ये कि मैं नज़मों का शायर हूँ, मैं गज़लें बहुत कम कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह के मौज़ूआत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाना चाह रहा था वो इतने खुरदुरे थे, इतने पथरीले थे, या यूं कहूँ कि इतने सख्त थे कि उन्हें गज़ल जैसी खूबसूरत जो एक तहजीब है उसमें बांधना मुश्किल हो रहा था। दूसरी बात, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और जिस दौरान मैं बड़ा हो रहा था, जिस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वही वो दौर था जब मुल्क के सियासी और समाजी हालात बहुत बदल रहे थे। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आ रहा था, तो दुनिया में, देश में होने वाली हर एक बात जो है वो बहुत जल्दी हम तक पहुंच रही थी, हमारे रिएक्शन उस पर बहुत जल्दी आ रहे थे। तो मैं मशायरों में जब आया तो मैं हिंदी में कविताएं लिखता था और हिंदी में कविताएं लिखने की वजह से कवि सम्मेलन में, मशायरों में एक आम आवाम से मुलाकात होती थी। लेकिन जो आम हिंदुस्तानी ज़बान है जिसे हिंदी उर्दू मिला करके हम लोग बोलते हैं, जो हिंदुस्तान के हर शहर में लगभग समझी बोली जाती है, मुझे लगा कि उस आम ज़बान में बात की जाए तो शायद ज़्यादा असरदार होगी। और फिर मशायरों के सफ़र पे निकला, आज यहाँ खड़ा हूँ। मुझे हुक्म है कुछ सुनाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आध नज़्म अपनी सुना सकूँ। और आज बिल्कुल कहीं से भी शायरी का ना तो माहौल था, ना मुझे इल्म था कि इस तरह के किसी महफिल में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन एक गज़ल के एक बदला एक शेर सुनाता हूँ, फिर आपको एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं और मैं हमेशा बड़ी भीड़ में, मुशायरों में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है। यहाँ की रवायत मुझे नहीं पता क्योंकि पहली बार जम्मू आया। यहाँ मुशायरे होते हैं, मैंने सुना है ऐसा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ जिसे आप हिंदी पट्टी कहते हैं, उधर मुशायरों में 50-50 हज़ार की, 1 लाख की भीड़ सामने बैठी होती है, सुनने वाले लोग होते हैं, तो वो एक अलग तरह का माहौल। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ जो भी लोग बैठे हैं ये बहुत अहम हैं और बहुत मोतबर लोग हैं। अपने आप में एक एक शख्स जो है वो हज़ारों की तादाद रखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन बड़े लोगों के बीच में, इन तलबा के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, प्रोफेसर्स के बीच में अपनी बात रख सकूँ। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। जी
بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں میں شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی. میں ایک اپنا شعر اور پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ ایک نظم آپ کو سناؤں. میری جو پہچان رہی ہے میرا جو تعارف رہا ہے مشاعروں میں میں بڑے یوں کہوں کہ بڑی سخت نظمیں پڑھنے کا عادی رہا ہوں لیکن میں یونیورسٹی میں کھڑا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں نہ تو سیاسی بات چیت ہو اور نہ ہی ایسی نظمیں کہی جائیں جو بالکل انتاب والی نظمیں ہیں. میں ایسی نظمیں پڑھنے کے بجائے میں کوشش کرتا ہوں نہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے مگر اس دل کی لے مدھم نہیں ہے مگر اس دل کی لے مدھم نہیں ہے میں سیدھے سچ بیانی کر رہا ہوں میں سیدھے سچ بیانی کر رہا ہوں میری باتوں میں پیچ و خم نہیں ہے میری باتوں میں پیچ و خم نہیں ہے. اور میری آنکھ کے سامنے جموں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہیں اور میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رونے ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے. اور پورا ملک ماحول اور ایک شعر
یہاں تو جان کے لالے پڑے ہیں، یہاں تو جان کے لالے پڑے ہیں، یہاں دستار کا ماتم نہیں ہے، یہاں دستار کا ماتم نہیں ہے۔ سفر میں اب گھٹن بڑھنے لگی ہے، سفر میں اب گھٹن بڑھنے لگی ہے، کوئی ساتھی کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی ساتھی کوئی ہمدم نہیں ہے۔ ہوائیں ہیں تمہارے ساتھ رونے، ہمارے پاس بھی مرہم نہیں ہے، بھلے ہی پیار کا موسم نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔ میں ایک میں کوشش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی رسم آپ کو سناؤں۔ میں خود، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ میں کیا سناؤں یہاں پر، لیکن دھیرے دھیرے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے رنگ میں لا سکوں۔ فلائٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں پورا حق ادا کر کے جانا چاہوں گا۔ سیاست میں آنے کے بعد اچھی محفلیں جو ہے ملنا بڑا مشکل کام ہو، تو یہاں اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور اچھی محفل ہے، تو ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے کی نظر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے۔ ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر جھوٹ کا کوئی سورج گوارا نہیں، جھوٹ کا کوئی سورج گوارا نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم
लगाता रहा, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। आखिर में एक बहुत छोटी सी नज़्म जो है बहुत सुनी गई, और मैं शुरू में ही प्रोफेसर साहब ने बात कही ना कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। कुछ नज़में जो बहुत सुनी गई पूरी दुनिया में, एक फ़लस्तीन की नज़्म बहुत सुनी गई है, कश्मीर की नज़्म बहुत सुनी गई, लेकिन एक हालिया नज़्म जो बहुत सुनी गई, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके एक बंद आपको सुना दूँ। और मैंने कहा ना, शायरी मेरी नज़रों में आवाम के जज्बों की तर्जुमानी करने वाली चीज़ ही शायरी है। मैं हिंदी लिटरेचर से आया, मैंने कवि सम्मेलनों में हिंदी में कविताएं पढ़ी, तो मैं बहुत दायरे में नहीं बन सका, इसलिए उर्दू अदब के बड़े लोगों ने कभी कभी कबूल करने से मना भी किया। तब लोग मुझे कहा करते थे कि इमरान, तुम जिस तरह की शायरी पढ़ते हो इसे किताबों में जगह नहीं मिलेगी। तब मैं लोगों से कहता था कि मैं मरने के बाद लोगों के दिलों में जगह पा जाऊँ, बस यही काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, जो हसास दिल रखते हैं, तो कभी कभी उनके दिलों में जगह मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि लिखना पढ़ना जो है वो कबूल हो गया है। मैं एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाऊं। अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। ये दोनों बहुत सुनी गई ये नज़्म, तो मैं सुनाता हूँ आपको। अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा, जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा, यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा
आफताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। एक आम जो जबान है, आम बोलचाल की जो जबान है, मैंने कोशिश किया है कि उसे इस्तेमाल करते हुए तमाम ऐसे अदब नवाज लोग या तमाम ऐसे समाजी लोग जो कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हें जोड़ा जाए कि गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब व शायर कभी मरेंगे, कलम के बंदों जबान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे, खामोशियां अपनी ओर डालो, कलम से आंसू निचोड़ डालो, उठो जमाने को ये बता दो, उठो जमाने को ये बता दो, लहू लहू इनकलाब लेंगे, तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। बहुत शुक्रिया। पढ़ने को, सुनने को, सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पे भी ये युवा छात्र में जाता है और आदि लगाव रखते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ, बस मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने रंग में आए हुए बिना वापस चला जाऊँ। मैं जब मिसरे पढ़ता हूँ तो एक बार इस तरफ देखता हूँ, इधर देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, तो लेकिन अजय का हुक्म है, मैं उसी आजादी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जरूरी भी है कि हम उसे बचा सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि वो बची रह सके। कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उसको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खिलौना ही रह जाए, लोग बीमार ना हो, जहां भी हम लोगों को बेदार कर सकें, जगा सकें, उस कोशिश में जितना हम कामयाब हो सके। मैं एक
ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چھپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ نظم بڑی ہے، پھر کسی مشاعرے میں سناؤں گا انشاءاللہ، پوری کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کے بیچ میں آ کر کے، آپ سے ملاقات کر کے، اور جو محبتیں آپ نے دی ہیں اس کے اردو ڈپارٹمنٹ کا، اور خاص طور سے آپ کے نوجوانوں کے لیے محبت بڑا شیخ
कश्मीर देश के अंदर स्नेह और मोहब्बत ज्यादा अच्छी आती है, युवाओं को मौका चाहिए क्या होता है। अब किसी नौजवान के बजाय हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्ग ने हुक्म किया है भी है, रोजे से भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ा सा ये हिंदुस्तान यही मुश्किल है, ये तो ख्याल ऐसे हैं कि कुछ सुनाया जाए और सामने से कहा जाता है कि रोजे का ख्याल रखा। जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो एक छत के नीचे इकट्ठा हो, यही इस मुल्क की और यही यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है और ये खूबसूरती बरकरार रहे। और मुझे हुक्म है कि मैं कुछ मोहब्बत का सुनाऊं। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ। मैंने फिर आपसे कहा कि मैं नज़्मों का शायर कौन सा है, आप किसे पसंद करते हैं, किसे फॉलो करते हैं। तो मैं शुरू में लोगों से कह रहा हूँ कि मैंने तमाम बड़े जो हमारे शोरा हैं, मैं ज़मीन में जाके सुना है मुशायरों में, हमारी तरफ बहुत रवायत है मुशायरों की, आप भी समझते हैं बिहार से हैं, वहाँ भी इसी तरह की रवायत है। एक मुशायरा अगर बिना बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के भी अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो 20-25 हज़ार की भीड़ किसी भी शहर में आसानी से सुनने वालों की मौजूद रहती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी रात किस तरह का नजारा होता है, बहुत अलग सा। तो उन मुशायरों में खड़े होकर के पढ़ना और उसकी जो रवायत है उसको जिंदा रखना वो एक अलग सा है। मैं बहुत छोटी सी जगह से निकल करके मुशायरों की दुनिया में आया और खुदा ने लोगों के दिलों तक पहुंचाया, ये भी सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक नज़्म सुना रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं आपके पसंदीदा शायर, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि बहुत अच्छी शायरी हुई है उर्दू में, लेकिन जब मैं हबीब जारी को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सफेद किनारे और शायरी, ये वाली जो शायरी है ये दिल के बहुत करीब है। तो उस जमीन पर एक नज़्म लिखने की मैंने कोशिश की उनकी जमीन पर, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपको बड़े लोग बैठे हैं। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या
میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ علامہ اقبال کو میں ایک طرف کیا اپنے علامہ اقبال کی سنا بھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب یہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب عمران صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ کتابوں میں نہیں، جو دل میں بس جائے وہ بہت بڑا شاعر ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، آج نذیر کو بہت زیادہ پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ ترقی پسند جتنے بھی شعراء تھے سب کے حوالے سے اسی طرح سے بات کی گئی، آج فیض، کیفی اور سردار کو اسی طرح سے پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ تو آنے والا دن جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا، اور اس سے بالکل نہ بنائیں کہ مشاعرے کے شاعر جو ہوتے ہیں وہ ادب میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں تو آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ ڈھونڈو گے مجھے ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے مجھے ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں۔ تو دراصل ایسے شاعر کو آپ براہ راست سن رہے ہیں، شاید آپ کو ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوگا، جو ہمارے نئے طلباء اور طالبات ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے شعبے کی کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ریاست نے بتا دیا ہے آپ کو کہ شاعری کے بارے میں یہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ ہمیشہ مشاعرہ کے شاعروں کے بارے میں یہ آج بھی کہا گیا کہ مشاعرہ کے شاعر جو ہیں ان کی شاعری سنجیدہ شاعری نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایک بات ہے۔ میں چمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان عمران پرتاپ گڑھی صاحب کہ جن کی محبت، جن کا خلوص ہمارے ساتھ ہے، جنہوں نے ہماری اس چھوٹی سی دعوت کو قبول کیا ہے، تو ایسوسیٹ کریں گے شعبے کی طرف سے۔ یہ ہمارا ایک حقیق سے چھوٹا سا صفحہ ہے ان کی کہ وہ ہمارے شعبے میں تشریف لائے۔ یہ شعبے کی بڑی بات ہے، ہم سب، میں اور آپ، ہمارے ریسرچ اسکالرس، ہمارے عزیز طلباء اور طالبات، ہمارے شعبے کے لوگ، آپ سب لوگ جو ہے وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب یہاں پہ آج ہمارے درمیان تشریف لائے تھے۔ یہ طابق صاحب کی کوششیں تھیں، اور انکش پناکر صاحب کے جو نیشنل سیکرٹری ہیں نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا کے، شہید صاحب کو، ان سب لوگوں کو کہ ہمارے شعبے کے ہمارے جو ہے وہ ریسرچ اسکالر ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نصیب علی، جو کہ اس وقت جموں کشمیر
की शायद से कोई वाकिफ नहीं है। आप ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसको बहुत बड़े स्केल पर आज ही पता चला, वरना यह पूरा शहर जो है उमर प्रताप की शायरी सुनने के लिए, ये मोहब्बतों का शहर है, यहाँ मिलने की सुविधा है जम्मू के शहर में, यहाँ मिक्स कल्चर है, यहाँ लोगों में बहुत भाईचारा है, बहुत मापे हैं, बहुत खलूस है, शायरों को सुनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। मैं एक बार फिर आपका दावत नहीं दूंगा, आपकी फ्लाइट का टाइम है, और इस उम्मीद के साथ कि जब भी आप दोबारा कभी इन्विटेशन शो की तरफ से आएगा तो आप हमारी गुजारिश, आप हमारी रिक्वेस्ट को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसका? ये तो मेरा, वो आपका।